Morning students. So till now we have already covered that is in the lot of things in the risk and insurance management. And last class we have discussed about that is how risk management in various organizations, and we have also that is covered that is the very essential points which is very it is common to all the that is organizations. And we will also that is discuss about the risk management in the steel sector or iron and steel sector. So my dear students, we have to discuss today that is about how the risk management they are organizing in the IT sector, and how they are organizing in the that is the banking sector, and how they are organizing in the transport and logistics system, and how they are also organizations in the insurance sector, and how they are organizing in the how the risk management is done in the case of the health sector. Okay, basically students, when you are going about the IT sector, so first that is today we will discuss about that is the risk management in various organization. Part 2. Okay. So we in the last class we have already covered in that the basically that is risk management in the that is the iron and steel industries. Now today we will discuss about that is what happened, that is risk management in IT sector, and another that is risk management in banking sector, third risk management in insurance sector, and fourth that is we'll discuss that is the risk management in transport and logistic sector, and fifth that is the risk management in health sector. So my dear students, IT sector. So today information technology has played a significant role in each and every sector. IT उसका पोजीशन बना लिया है हर सेक्टर में। आईटी का अहमियत और जो कि आईटी का इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ जो हमें बोलते हैं कि जो निर्भर होता है ना, उसके ऊपर बहुत जरूर होता है, माने इम्पोर्टेंट होता है। दैट इज अ वेरी वेरी दैट इज वी कैन से दैट विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल नॉट यूज एनी ऑफ द सेक्टर। ओके, मीन्स I mean to say that is the IT have created its own image in every that is what sectors. So IT में अगर हमें प्रोसेस को देखना चाहिए तो किस तरह की करना है, आइडेंटिफाई रिस्क करना है, और इसके बाद एसेस करना है रिस्क, इसके बाद मिटिगेट करना है, जो कि हमें पहले से ही बोल चुके हैं, दैट इज हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, एंड इट इज आल्सो व्हाट कैन डेवलप द response risk, and you have to also review the risk management procedures and everything you have to create it here. So here in this case of the what happened,
that is comprehensive approach is there to risk management used by the what happened, that is this approach is the risk management approach is mostly it is created by the Australian Emergency Management Agency. It is what happened, Australian Emergency Management Agency. It is mostly by what have 3 PPRR model. It is what PPRR model. What is the PPRR model? So let us discussing about one thing. I am going about to discuss about the PPRR model. So P, R and R model. So in this case of PPR model, so P is for what happened, that is prevention. P is for pre-preparedness. Then R for response. Then R for recovery. Okay. So, my dear students, when you are discussing about these 3 PPRR model, which is very important, that is the model of the risk management. So, in this case, we have to discuss about the P, matlab prevent. How will you prevent the risk? Okay. Prevention means we have to take, that is the precautions in order to avoid the risk. That is a very important thing you have to study here. Okay. So first the prevention must be there. Without prevention we cannot, that is what happened, reduce the risk. Okay. Okay, you have to, or you cannot prepare to face, that is what happened, measures should be there. And another the preparedness. So you have to prepare for to that is face the risk. Without preparedness we cannot face the risk. That is you know very well. So preparing must be there. What type of prepare? How? What should be prepared? That is depend upon the conscience, and that is depend upon the nature of the risk, and that is depend upon the what we can say, that is measuring of the, that is the risk factor, that we have to categorize it. So preparedness must be there also, and we have to respond the risk. Unless we respond the risk, we cannot face the risk. चैलेंज को एक्सेप्ट बिना करके चैलेंज कैसे लेंगे? चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए चैलेंज को रेस्पॉन्स करना चाहिए. सो चैलेंजिंग रेस्पॉन्स मीन्स इट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, रिस्क को रेस्पॉन्स करना जरूरी है. बिना रिस्क को रेस्पॉन्स करके हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उसे हमें रिकवरी भी करना चाहिए. रिकवरी करने के लिए हमें बहुत सारा, दैट इज व्हाट हैपन, वी हैव टू सी द थिंग्स, व्हाट वी हैव टू models we have to accept it, and what we have to in what methods, in what techniques we have to gather that we do. Because आजकल देखो बहुत सारे माने जो कि होता है जैसे साइबर क्राइम होता है, या बहुत सारे रिस्क भी फैक्टर हो जाता है. ऐसे अगर आजकल अगर उस मॉडल को अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, उस मॉडल को अगर रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उस मॉडल के बारे में नहीं जानेंगे, तो क्या करेंगे? दैट इज हैकिंग भी हो सकता है, और बहुत सारा भी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है. सो मैनेजिंग आईटी रिस्क मतलब वी हैव टू सी, दैट इज द स्पान एक्ट. वी हैव टू सी दैट इज द व्हाट, दैट इज द स्पान एक्ट. SPAN Act, okay, SPAN Act 2003, and another, that is we can say, that is the Electronic Transaction Act, Electronic Transaction Act 2001, and another, that is the privacy laws. So this is the what happened. These are all the things which are very important things, because these are the avoided with the laws and regulation which we cannot
which we cannot avoid, and which have to take the importance of these things also. Okay. So we have to follow, that is the IT policies, and that is the procedures should be there, and it should be explained to the staff and contractor, customer, those who are using this IT. Okay. So I have already told you that is already that what happened. The IT have already positioned the place in each and every sector, that we cannot ignore. Okay. Without IT we cannot also, or without the information technology knowledge, we cannot forward for the next generation also, whatever may be. So this is the one thing we have to, in the IT sector we have to, PPRR model you have to accept it, and another, that is what happened. This is the things what, that is the regulation, it is made by the what happened government. We have to under this regulation we have to work it. Okay, my dear students, now we will go to the risk in the banking sector. In banking sector. So banking sector, it is one of the very oldest sector. Banking sector is one of the very important sector in everybody's life, as well as in every organizations that we know, that is because banking is the only organization who can lend money and who can receive the money. Okay. So the money is a very powerful ingredient of any sustainable of the growth of the sustainable of the business, or that is the growth of the life organizations, whatever it may be. That we know, that is money plays a major role in strengthening the organizations, but there is a risk on that of the what, that is the banking sector. Yes, simple पैसे लेने से देने में भी वो भी रिस्क होता है. कभी कभी अगर 500 रुपए अगर गिनती करते करते 100 के बदले में अगर 100 that is 500 notes. If the banker is giving 500 notes, 100 number of pieces, instead by wrongly calculated, that is what have been given, that is the 101 note pieces of 500 notes. It means he is responsible for that another 500 notes. Sometimes transaction is wrongly interpreted to another accounts. That is also created a what? That is the risk to that of the banking sector. The money is transferred, maybe manually or whatever may be. It is done by the banking employees or whatever may be. That is, it is a what happened, risk is also there. Sometimes you are paying, but that is going in another way or in another account. That is also a risk. कभी बैंक से लोन लेते हैं, कोई भरपाई करते ना नहीं, वो भी दैट इज रिस्क है. जो कि बैंकिंग का फंक्शन है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी होता है और डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से हमें डिफरेंट रिस्क भी देखना कैसे करेंगे. लिक्विडिटी रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, कंसंट्रेशन रिस्क होता है, देन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशन रिस्क होता है, बैंक की इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, बहुत सारे रिस्क होता है. हमें किसी रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, किसी रिस्क को छोटा नहीं कर पाएंगे, किसी रिस्क को बड़ा नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दैट यू हैव टू tactfully, we have to handle this what happened, that is the risk. Okay, you have to, if we say that is what happened, the risk is everywhere. Okay, that we know very well. So establish करना,
उसे रिलायबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में डालना, इंटीग्रेट करना, ऑल बिजनेस एक्टिविटी को प्रोवाइड करके किस तरह की करना, ये सभी देखना चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रिस्क को भी हमें अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ये मेंटली भी रिस्क को आइडेंटिफाई कहाँ पे होना उसे देखना चाहिए, उससे प्रोसीजर को हिसाब से जाना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए और अच्छी तरह रिस्क असेसमेंट करके रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें देखना चाहिए। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर ठीक नहीं है तो बैंकिंग का भी फंक्शन भी रुकावट भी बन सकता है और दैट इज व्हाट हैपन, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट ऑफ द व्हाट दैट इज द बैंकिंग सेक्टर। इसलिए हमें कस्टमर को इकट्ठा बैंकिंग में साइलेंस मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हम काम में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, इधर उधर खड़े होना नहीं चाहिए, बहुत सारे रिस्क होता है। ओके, हाई दैट इज बैंकरप्ट भी हो सकता है, ओके, और रॉबरी भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, उन्हें कहा नहीं सकेंगे रिस्क नहीं है, तो हमें उसके ऊपर भी देखना चाहिए। हर मैंने 4 एंगल 4 कॉर्नर में हमें देखकर दैट इज सिक्योरिटी बनाकर हमें देखना चाहिए, तो कुछ रिस्क को हमें कंट्रोल कर सकते हैं और हमें भी कस्टमर को भी अच्छे सर्विस भी दे सकते हैं। So that is one of the very major problem, and we can say that also that is bank is also what providing so many or exposing that is the potential or its operations too, and also internal control system भी होना जरूरी है और appropriate information system भी देना चाहिए और adequate process जो कि internal capital adequacy assessment होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद that is what happened, we can say another that is the insurance management in insurance sector. Okay, so risk, चलो बड़ा ये इंश्योरेंस सेक्टर भी आजकल द वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द रिस्क दैट इज अवॉइडिंग द रिस्क। इट इज वन ऑफ द थिंग वी कैन से दैट इज हाउ द रिस्क इज इट इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द इंश्योरेंस दैट वी नो। रिस्क एंड इंश्योरेंस एक द जस्ट लाइक ए टू साइड ऑफ ए कॉइन। ओके, अगर रिस्क भी है तो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है तो रिस्क है। ओके, इसको असेसमेंट करना है, जो इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट है, इसे असेसमेंट करके कितना क्वांटिफिकेशन करना है, लाइक्लीहुड कैसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है उसको ऊपर देखना चाहिए। और जैसे कस्टमर वोल्ट, जो कि आजकल बहुत सारे कस्टमर वोल्ट में मैंने जो कि रिपेयर करते सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस, दैट इज वी नो, बिकॉज वी नो दैट इज इंश्योरेंस कंपनी दे आर प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ सर्विसेज टू दैट ऑफ द to the world or to the business organization, providing security, providing that is what happen if you say for the common men, for the future benefit plans, retirement plans is there, for that is the pension plan is also there. How, why these plans are adapted, why the plans they are given by the insurance company in order to that is to mitigate all the risk which is may be happen during the course of their life. In order to that is face the risk may arises. Suppose मैं अगर एक एडवर्टाइज आ रहा है ना, सुंदर एडवर्टाइज, पॉलिसी बाजार का एडवर्टाइज, और वह मीटर जब चालू होता है ना, जब इंश्योरेंस अगर नहीं कर रहे होंगे, जितना भी सेविंग होगा वो बोलते हैं कैसे, दैट इज जब हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते सो पूरा मैंने मेडिकल का बिल का एक्सपेंडिचर पूरा बढ़ जाता है और जितना भी सेविंग होता है वो कम हो जाता है, पूरा ब्रेक डाउन नहीं। उसी तरह बेटा क्या होता है, वो क्यों बोले, वो एक संदेशदार है। अगर इंश्योरेंस करेंगे तो क्या हमें हेल्थ बेनिफिट ले सकता है,
या मेडिकल बेनिफिट भी ले सकते हैं। हमारा जो भी सेविंग है ना वो वैसे ही रह जाएगा और बाकी इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ तो अगर सेविंग किए होते तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर सेविंग करेंगे तो, क्योंकि हमारा लाइफ का भी कभी भी भरोसा नहीं है दैट इज विल सस्टेन दैट मच ऑफ लाइफ। बट डेफिनेटली इफ यू हैव द इंश्योरेंस then whatever the problems and whatever the dangers we are arising, that may be whatever that is it may be overcome. Okay, the beneficiary may not be in trouble after the occurrence of any tragedies. So risk management work typically involves in the mathematical and statistical models. So and we can say that is here it is the fold and distribute, the model of fold and distribute. इंश्योरेंस कैसे होता है? देखो, इंश्योरेंस का मतलब देखो, अगर हम 5 पर्सन ए, बी एंड सी and D and E. होल्ड का मतलब होल्ड मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया 100 रुपीज, यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया 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 100 रुपीज। सो टोटली वो 500 रुपीज। ओके, सो नाउ इट इज what we collected. It is for A 100 rupees is not, that is a major money, okay, a large money. He can contribute, everyone can contribute, that is what happened, that is 100. Small amount is there. Sometimes that is what happened, suppose C what felt some, C faced some that is faced some problems. ओके, ये जो सी का जो वैल्यू हुआ, सी को चाहिए 400 रुपीज। ओके, सो इंश्योरेंस अगर वो सी यहाँ पे जो 100 रुपीज जो किया है, मतलब बाकी 400 इनमें से भी आ सकता है। दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी होल्ड दिस, द इंश्योरेंस कंपनी दैट इज hold this money and distribute it to C when the C faces some problems. And this 400 again it will be what happened when somebody, that is, you will continue the part in the insurance sector. We will discuss many more things. How this is simple. That is how I explained. That is told you. That is about the what. That is how hold and distribute करके distribute करना सबको देना है। सिंपल सी को नहीं है, बाकी बी या सी को, डी की जो भी कितना है, जिसको भी जितना चाहिए उसको भी दे सकते हैं। दैट इज इट इज व्हाट हैपन, वी कैन से दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ प्राइसिंग मार्केट, जो कि वैल्यू होता है इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट में। अलाइनमेंट ऑफ द प्राइसिंग मार्केट स्ट्रेटेजी करना है, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और रिस्क कैपिटल जो होता है ना उनको ऑप्टिमाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को दैट इज समझाना चाहिए कि दैट इज हाउ टू मिटिगेट और दैट इज द फेस द रिस्क। वी हैव टू असिस्ट द क्लाइंट रिकॉग्नाइजिंग रिस्क इवेंट आल्सो। क्लाइंट का कितना रिस्क फैक्टर होता है उसको भी देखना चाहिए। बिना देखे समझे हमें नहीं, कभी भी नहीं डायरेक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। फीडबैक भी लेना चाहिए, उसको ऊपर भी देखना चाहिए, बिकॉज इट इज द वैल्यू के ऊपर देखते हैं अपने, एंड इसके बाद कोर सर्विस के ऊपर भी देना पड़ता है। कोर सर्विस मतलब असेसमेंट, डिजाइन, देन इम्प्लीमेंट, जो कि रिस्क स्ट्रैटेजी का होता है, देन इसके बाद असेसमेंट, देन डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड इंश्योरेंस एंड रिस्क फ्रेमवर्क होना जरूरी है,
देन इसके बाद दैट इज किस मेथोडोलॉजी में काम करना है उसको भी देखना चाहिए। ये कोई छोटा मामूली की बात नहीं है, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स आर देयर, वी हैव टू सी इट। रिस्क एपिटाइट होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें केपीआई डिजाइन करना चाहिए। ओके, केपीआई डिजाइन करना चाहिए, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो प्राइसिंग होता है उसको भी देखना चाहिए, और री इंश्योरेंस प्रोग्राम डिजाइन करना उसको भी देखना चाहिए। सो रिस्क भी बहुत सारे मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में रिस्क अरेंज होता है, बट उसे कैसे ओवरकम करने के लिए रिस्क को भी मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी दैट इज लाइफ रिस्क भी हो सकता है, कम प्रीमियम दिए होंगे, बट डेथ अगर कम्स मीन्स दैट इज इट इज all the proportionate it will be distributed to that of the person only who will get the benefit to that persons, suffered persons. Okay, so my dear students, this is a risk in the case of the what insurance sector, and another that is what happen, that is transport and that is logistics. सी स्टूडेंट्स, आजकल जमाना जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक अगर नहीं होता तो हमारा भी गुड्स भी हमारे पास सही टाइम से सही दैट इज जगह को नहीं आ पाएगा। सो इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बाहर मैंने कभी कभी रिस्क भी अरेंजेस होता है, टाइम लैगिंग होता है, क्लाइमेट बैड वेदर क्लाइमेट के जरिए से भी रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, और फाइल जो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होने के नाते भी वहीं पे भी रिस्क भी बढ़ जाता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनी टाइप देयर इज ए चांसेस ऑफ द लॉस ऑफ द गुड्स इज आल्सो इन द मिड ऑफ द दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, देयर इज ए रिस्क ऑन द ड्राइवर, okay, risk on the vehicles, and how that is one has to be overcome from this. So इसे करने के लिए हमें अच्छी तरह कॉस्ट मैंने हाई डायनामिक रिस्क इश्यू को देखना चाहिए, जैसे कॉस्ट ऑफ रिस्क को देखना चाहिए, जैसे फ्लीट रिस्क सेफ्टी देखना चाहिए, क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, देन इसके बाद ड्राइवर हायरिंग जो करना है, ये सभी रिस्क फैक्टर को यहाँ पे करना पड़ता है। तो हमें अच्छी तरह सॉल्यूशन को निकालना चाहिए, कैसे पूरा स्टडी करना है, असेसिंग करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसे असेसिंग करके हाउ टू दैट इज द रिस्क कैन बी मिनिमाइज, वी हैव टू सी इट। ओके, प्रैक्टिकली वी हैव टू इन्वॉल्व इन दैट थिंग्स, सो बेटर वी कैन से दैट इज द डेली दैट इज प्रैक्टिसेस, लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस, हमें लॉजिस्टिक का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। उसका जो बहुत सारा क्राइटेरिया है उसको ऊपर भी हमें दैट इज नॉलेज होना जरूरी है, और ड्राइवर वगैरह जो भी कुछ वगैरह होता है उनको भी हमें ये बताना चाहिए कि दैट इज डेफिनेटली एंड विल दैट इज समहाउ वी कैन अवॉइड द रिस्क। ओके, कभी कभी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तब भी रिस्क हो जाता है, तो हमें इसे किस तरह के हैंडल करना है ये हमें देखना पड़ता है। ओके, सो रिस्क भी वहीं पे भी बहुत सारे मैंने खुद का नॉलेज भी होना चाहिए, और बहुत हैंड भी होना चाहिए, मैन पावर भी होना चाहिए, ताकि इसको रिस्क को भी हैंडल कर सके। छोटा पार्ट है बट दैट इज वी हैव टू हैंडल विद वेरी वेरी क्रिटिकली। देन अनदर दैट इज द लास्ट पार्ट यू कैन से दैट इज द इन द केस ऑफ द व्हाट दैट इज रिस्क मैनेजमेंट इन द व्हाट दैट इज द हेल्थ सेक्टर। सो आजकल ह्यूमन बीइंग हेल्थ सिस्टम जो कि एक थ्रेट है, अभी देखो जो वी हैव नो दैट इज दिस इज द कंडीशंस ऑफ पैंडेमिक, दिस पैंडेमिक में कोरोना का कितना जानलेवा हो गया। जो
मेडिकल पेशेंट जो मेडिकल में जो वर्क कर रहे थे उनको भी कोरोना हो चुका, वो भी बहुत सारे भी डेथ भी फेस कर रहे हैं। आने जाने लोगों को भी हेल्थ के ऊपर भी कंसियस होना जरूरी है। बहुत सारा कंडीशंस, डस्टी कंडीशन भी वो लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पे वेरी कंट्रीब्यूटिव थिंग हमें देखना चाहिए, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशंस। हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशंस, दैट इज HACS. It is very, very, very important. That is, we have to see it. Have to get the, because so many problems are arising. Okay, so तबीयत किसका कब बिगड़ता है किसको पता नहीं चलता है। हमें अच्छी तरह अगर हेल्थ सेक्टर में भी देखो, हेल्थ लोग आजकल जो कोरोना में, दैट इज कोविड-19 में क्या होता है, दे आर गिविंग सर्विसेज टू दैट ऑफ द पेशेंट, बट एंड दे आल्सो व्हाट हैपन facing, that is they also having that disease, they have also fight with the COVID-19 also, they are himself only, the doctors, the nurses. Why these things? Because बहुत सारा रिस्क यहाँ पे आता है। पेशेंट का रिस्क होता है, डॉक्टर का रिस्क होता है, मेडिसिन का भी रिस्क होता है। सो द रिस्क also comes from the various communication problems is also there, lack of knowledge problems is also there, human related problems is also there, all the things. एंड यहाँ पे हमें अगर शुरुआत करेंगे तो दैट इज बेनिफिट के लिए हमें बहुत सारे दैट इज ERM, तो क्या एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें देखना चाहिए, द एंटरप्रेन्योर रिस्क मैनेजमेंट, और दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द पेशेंट केयर लेना चाहिए जो कि क्लिनिकल होता है, मेडिकल स्टाफ को भी होता है, वो भी उनका भी रिस्क होता है, उनको भी जैसे क्रेडेंशियल करना है, प्रिविलेज करना है, जॉब टेस्टिफिकेशन करना है, उनको देखना पड़ेगा, एम्प्लॉय इंश्योरेंस को देखना पड़ता है, नॉन मेडिकल स्टाफ को भी उनको भी रिस्क होता है, मैनेजरल स्टाफ को भी उनको भी रिस्क होता है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट भी करना चाहिए। जैसे भी है जो हस्मत होते हैं, जो कि hazardous material and waste disposal होता है ना, उनको भी that is they have also providing the risk, having the risk. So इसे tactfully handle करना है, ठीक से आइडेंटिफाई करना है, ठीक से असेसमेंट करना है, असेसमेंट करके उसे कैसे दैट इज ओवरकम करना चाहिए वो देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमें भी दैट इज बार बार क्या दैट इज रिस्क भी हम खुद भी उठा सकते हैं, खुद भी दैट इज फेस करना पड़ेगा, और दैट इज वी कैन नॉट टॉलरेट ऑल द रिस्क। सो देखो आजकल जैसे भी हुआ है, जो बहुत सारे डॉक्टर भी मर चुके हैं, बहुत सारे नर्स भी they have already facing a lot of problems in this case of the pandemic, corona. What happened? Why these things? Because even though they are taking the precautions, but they are also involving in that of the risk. हमें बहुत सारा संभाल के करना पड़ेगा, संभाल कर दैट इज लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए, और हमें भी प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। So these are the things, that is how that is the various organizations are there, and they are what happen, they are involving, or that is they have also practiced in the risk management for the better systems. Okay, this is the unit 1. Okay, and we'll have a talk with the Google Meet, in the Google Meet regarding the various doubts or whatever any classes you require. Thereafter we'll move to the second unit. Always take care of your body, the health. Okay, be safe, stay always at home, and always be safe properly. Thank you. Bye.